नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। आइए रुक करते हैं इस न्यूज़ बुलेटिन की और बात होगी रीवा की, जहां नेताजी मुलायम सिंह यादव की मनाई गई पुण्यतिथि। आगे बात होगी शाजापुर की, जहां कोहलिया में मां अंबे गरबा महोत्सव का हुआ भव्य समापन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। गायकवाड़ हवेली पुलिस ने दिन दहाड़े चोरी करने वाले एक चोर को पकड़ा है। इस चोर के खिलाफ गुजरात ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी शिकायतें दर्ज हैं। चोरी करने से पहले वो एक खास इलाके को निशाना बनाता था और फिर उस इलाके में जाकर टो लेता था और मुंबई चला जाता। अहमदाबाद के कालूपुर और गायकवाड़ हवेली इलाकों में चोरी की घटनाओं में वृद्धि हुई थी। इन घटनाओं की जांच के दौरान पुलिस को एक घर के शीशे पर उंगलियों के निशान मिले जहां चोरी हुई थी। पुलिस ने इन उंगलियों के निशानों को FSL को भेजा। जब उनका मिलान किया गया तो पता चला कि वो सफ़ी उर्फ सलीम के उंगलियों के निशान थे, जो पहले भी कई चोरी को अंजाम दे चुका है। पुलिस को इस आरोपी के बारे में जानकारी मिली तो पता चला कि वो मुंबई में है। पुलिस की एक टीम मुंबई रवाना हुई और आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस ने जब आरोपी से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसे बचपन से ही चोरी करने की आदत थी। गायकवाड़ हवेली पोलीस स्टेशનમાં તારીખ 29 સપ્ટેમ્બરના રોજ એક ઘરફોડ ચોરીની ઘટના બની હતી, જેમાં 2,70,000 રૂપિયા રોકડની ઘરફોડ ચોરી થયેલ હતી। એ દિવસે અમે લોકોએ ગુનો નોંધ્યો હતો અને એ ગુનાની તપાસના ભાગ સ્વરૂપે અમે ફિંગરપ્રિન્ટ એક્સપર્ટ FSL ખાતેથી બોલાવ્યા હતા અને એ ફિંગરપ્રિન્ટ એક્સપર્ટને ત્યાં બનાવ સ્થળેથી ચાન્સ પ્રિન્ટ મળ્યા હતા, જે એમણે પોતાના ડેટાબેઝ નાફિસ માં સર્ચ કરતા એમને આ ફિંગરપ્રિન્ટ મેચ થતો એવો એક અન્ય ગુનો મળી આવ્યો હતો અને એ ગુનાના આધારે આ ડેટાબેઝમાં જે વ્યક્તિની ફિંગરપ્રિન્ટ છે એની તપાસ કરતા આ આરોપી શફી ઉર્ફે સમીમ ઉર્ફે ટોપી અબ્દુલ શેખ કે છે ભિવંડીનો રહેવાસી છે મહારાષ્ટ્રનો, એ મળી આવ્યો હતો। ત્યારબાદ આ આરોપીને અટક કરવા માટે મુંબઈ પોલીસ ક્રાઇમ બ્રાન્ચની મદદ લેવામાં આવી હતી અને એમણે પોતાની રીતે આ આરોપીની તપાસ કરતા એમને મળી આવ્યો હતો। એમણે ત્યાં અરેસ્ટ કર્યો હતો આરોપીને આ ગુનાના આધારે અને ત્યારબાદ અમે આ આરોપીની કસ્ટડી લઈ અને ગાયકવાડ હવેલી પોલીસ સ્ટેશન લાવી એની પૂછપરછ કરી અને પૂછપરછ દરમિયાન જાણવા મળ્યું કે આ આરોપીએ અગાઉ અમદાવાદ શહેરમાં 3 અન્ય જગ્યાએ પણ ઘરફોડ ચોરી કરી હતી, જેમાંથી 2 જગ્યા ગાયકવાડ હવેલી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલી હતી અને એક જગ્યા કાલુપુર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલી હતી અને આ ત્રણેય ઘરફોડ અનડિટેક્ટ હતી, જે આ આરોપીની પૂછપરછ દરમિયાન ડિટેક્ટ થઈ હતી। આ ઉપરાંત આ આરોપીએ મહારાષ્ટ્રમાં આશરે 34 જેટલી ઘરફોડ ચોરીઓ કે અન્ય ચોરીઓ કરી છે અને રાજકોટમાં ધોરાજીમાં પણ એક ઘરફોડ ચોરી કરી છે, જેમાં પકડાઈ ગયો હતો। હાલ આરોપીને ગાયકવાડ હવેલી પોલીસ સ્ટેશનમાં 29 સપ્ટેમ્બરે જે ઘરફોડ ચોરીનો ગુનો થયો તેમાં અરેસ્ટ કરવામાં આવ્યો છે અને આગળના પણ ગુનાઓમાં એને અરેસ્ટ કરવામાં આવશે। ખાસ કરીને હેમો કેવા પ્રકારની હતી? મહારાષ્ટ્રની સ્પેશિયલ ચોરી માટે આવતો તો શું કારણો હતા ચોરી પાછળ? આ આરોપી જુગાર રમવાની ટેવવાળો હોય એને। अहमदाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता यगेश गोस्वामी की रिपोर्ट। अहमदाबाद के वेजलपुर इलाके में तांत्रिक अनुष्ठान के बहाने एक विधवा महिला से 14 लाख रुपए ठगने वाले एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। धोखाधड़ी के आरोपी साधक राम प्रताप भार्गव और गुरु माता विजयन देवी को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ कस्टम कार्रवाई शुरू कर दी गई है। राम प्रताप भार्गव खुद को काला जादू करने वाला बाबा बताता था और विभिन्न तांत्रिक अनुष्ठानों के माध्यम से दुर्भाग्य दूर करने की बात कहकर महिला का विश्वास जीतता था। वेजलपुर पुलिस टीम ने रिकॉर्ड और सबूतों के आधार पर त्वरित कार्रवाई की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बैंक रिकॉर्ड और कॉल रिकॉर्ड के अलावा सोशल मीडिया पर फैलाए गए दुष्प्रचार की भी जांच शुरू कर दी है। यूट्यूब चैनल है ब्रेकअप सोल्यूशन तांत्रिक एंड वशीकरण स्पेशलिस्ट नामनी। आमा तांत्रिकनो जे फरियादी है एने जोयेलुं एना पति अने एना दीकरानुं समयांतरे नजीकना समयमां अवसान थता તેમણે આમનો સંપર્ક કર્યો અને તાંત્રિકે એવું જણાવ્યું કે તમારો જે પતિ અને દીકરાનું મરણ થયું છે એ તાંત્રિક વશીકરણના કારણે થયેલું છે, એટલે તમારે વિધિ કરવી પડશે એમ કરીને જુદા જુદા સમયે ગૂગલ પેથી, પેટીએમથી, કુરિયર મારફતે, આંગળીયા મારફતે જુદી જુદી રીતે ટોટલી 14,18,000 રૂપિયા એમની પાસેથી પડાવી અને એમની સાથે છેતરપિંડી કરી હતી। જે તાંત્રિક છે એ ડુંગરપુર બીકાનેર રાજસ્થાનના છે, એનું નામ છે અઘરી બાબા ઉર્ફે બ્લેક મેજિક ઉર્ફે રામ પ્રકાશ सन ऑफ धनराज भार्गव અને બીજા જે એમની સાથે છે એ વિજેન્દ્ર દેવી, એ બંને સાથે મળીને અમને છેતરપિંડી કરેલી છે। વિજલપુર પોલીસે ટેકનિકલ સોર્સિસની મદદથી જે તાંત્રિક છે એની ધરપકડ કરી છે અને જે વિજેન્દ્ર દેવી છે એની ધરપકડ બાકી છે।
મહિલા લોકોના સંપર્કમાં કેવી રીતના આવી હતી અને કેવી રીતના આને પૈસા આવીને પડાવ્યા હતા? મેં આપને જણાવ્યું એ પ્રમાણે યુટ્યુબમાં એ લોકો સર્ચ કરતા હતા, એમાં ધ્યાન ઉપર એમને આવ્યું કે તાંત્રિક બાબા છે અને એના ફોલોવર્સ છે, એટલે એમણે એમનો મોબાઈલ નંબર અંદર આપેલો છે, એનાથી સંપર્ક કર્યો એટલે એમણે શરૂઆત જ્યારે વાત કરી કે મારા પતિને મારા દીકરાનું રીતે મરણ થયું છે, તો એમણે એ વખતે જ તાંત્રિકે એમની ભાષામાં કહ્યું કે તમારા પતિને દીકરાનું મરણ થવાનું કારણ એમના પર વશીકરણ થયેલું હતું, જેના કારણે થયું, એટલે જો તમે વિધિ નહીં કરાવો તો તમારો પણ मृत्यु थी। अहमदाबाद से सीनियर संवाददाता योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट। दीपावली के पावन अवसर पर मिठाइयों के महत्व को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा झालावाड़ की जनता को शुद्ध देशी घी से बनी स्वादिष्ट स्थानीय मिठाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं और इसी के तहत शुक्रवार को जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर ने मिनी सचिवालय के मेन गेट पर झालावाड़ सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार लिमिटेड के माध्यम से संचालित स्टॉल का विधिवत फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कहा कि झालावाड़ जिले में परंपरागत मिठाइयों का प्रचलन लगभग नगण्य हो गया है। जिला कलेक्टर ने बताया कि मिठाइयाँ सरस के शुद्ध देशी घी से निर्मित हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होंगी। शुद्ध देशी घी से निर्मित मोतीचूर के लड्डू, बेसन चक्की, मठरी, मक्खन वड़ा के लिए जिला प्रशासन द्वारा वर्तमान में 4 स्टॉल लगाए गए हैं। झालावाड़ की जनता अधिक से अधिक संख्या में इन मिठाइयों को खरीदे और स्थानीय मिठाइयों के स्वाद का लुत्फ उठाएं। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अमित कुमार, अतिरिक्त जिला कलेक्टर अनुराग भार्गव, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शंभू दयाल मीना, इनके अलावा अन्य कार्मिक मौजूद रहे। सर, किस तरह का ये प्रयोग किया गया है, इससे क्या फायदा होगा? देखो, फायदे के लिए ये प्रयोग नहीं किया गया। पहली बात तो चूंकि दिवाली के ऊपर हम देखते हैं कि मिठाइयों की जो गुणवत्ता है वो गुणवत्ता स्तरीय नहीं है, नंबर 1। और जो हमारी परंपरागत मिठाइयाँ हैं ये बाजारों से गायब होती जा रही है। तो जो हमारी परंपरागत मिठाइयाँ हैं, जो बेसन और घी के साथ बनने वाली मिठाइयाँ थी, उन मिठाइयों को झालावाड़ होलसेल भंडार के माध्यम से स्थानीय निवासियों को कम कीमत पर उपलब्ध कराने के लिए ये हमारा एक छोटा सा प्रयास किया गया है। होली पे भी हमने ये प्रयास किया था, उस प्रयास को भी लोगों का काफी समर्थन और सहयोग मिला था, क्योंकि उस समय होली के दिन ही हमने स्टार्ट किया था। इस बार लोगों की मांग थी कि इसको आप त्योहार सीजन जो शुरू होता है उसके 4-5 दिन 6 दिन पहले शुरू करें। उसी में ये 3 जगह ये झालावाड़ जो होलसेल भंडार है, कोऑपरेटिव होलसेल भंडार, उसने 3 जगह अपनी ब्रांचेज में ये मिठाइयाँ शुरू की है। आप देखिए 300 से 400 के बीच की जो मिठाइयाँ हैं, स्वाद की दृष्टि से, गुणवत्ता की दृष्टि से और स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छी मिठाइयाँ हैं। न तो ये मिठाइयाँ खराब होती हैं, न इन मिठाइयों से किसी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है। तो आप सभी के माध्यम से सभी झालावाड़ वासियों से मैं आह्वान करूंगा कि वे सभी अपनी दिवाली को और अच्छा बनाने के लिए, अपनी दिवाली को हेल्दी बनाने के लिए झालावाड़ कोऑपरेटिव होलसेल भंडार की जो मिठाइयाँ हैं इनका उपयोग में लें, और इनके उपयोग में लेने से उन्हें स्वाद भी नया मिलेगा, परंपरागत स्वाद मिलेगा। और कीमतें भी देखिए आप कि जो सबसे 300 और 400 के रुपए के बीच में इसकी कीमत है, और लाभ कमाना या कोई और कमाना जिला प्रशासन का इसमें उद्देश्य नहीं। झालावाड़ से सीनियर संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खबर जम्मू से है, जहां बता दें कि जम्मू कश्मीर जिला पुंछ भाजपा सामाजिक कार्यकर्ता युगल किशोर शर्मा ने मीडिया से बात की है और तमाम जानकारियां साझा की हैं। देखिए ये रिपोर्ट। आज सेवा सोसाइटी की युगल किशोर शर्मा जी का कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले आपका और आपका चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आज हम आपके चैनल के माध्यम से मन की बात कर रहे हैं। और आज जो हमारी आपके चैनल के माध्यम से जो बात हो रही है, ये बात उस विषय पे है जो कि बहुत बड़ा गंभीर विषय है पूरे भारतवर्ष के लिए। आप देखिए, तकरीबन 1 से 1.5 महीना पहले यहाँ पर जम्मू कश्मीर के बीच इतनी मूसलाधार बारिश हुई, इतने तूफ़ान आए कि लोग घरों से बेघर हो गए। और जम्मू कश्मीर सरकार और ख़ास तौर में अपने डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात करूं कि जितना नुकसान जम्मू में हुआ है, डोडा में हुआ है, कठुआ में हुआ है, बादल फटे, उसका कारण यही है कि हम लोग जो हैं अपने ट्रैक से उतर चुके हैं। हम लोगों जिसने हमें संसार में पैदा किया है, हम उसकी पूजा पाठ जो है विधि अनुसार नहीं करते हैं। जिस प्रकार जो है हमारे इस देश के बीच, खासतौर जम्मू कश्मीर के बीच जो है ये बरसात ने इतना बड़ा कहर मचाया, इतना पानी आया, बड़े बड़े ब्रिज बह गए, लोगों घर ख़त्म हो गए, एग्रीकल्चर लैंड टोटली ख़त्म हो गया। उस समय डिप्टी कमिश्नर पुंछ
हमारे अशोक कुमार शर्मा जी बड़े होनेस्ट ऑफिसर हैं। पुंछ में आए लोगों को बहुत बड़ी उम्मीद थी और जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि जब यहाँ पर भैतार नाला और ये हमारा प्लस नगरी से बोलते हैं दरिया, जब ये दोनों तूफान के ऊपर थे कि यहाँ पर इलीगल माइनिंग नहीं होगी, उसके बाद ठीक 10 दिन के बाद जम्मू कश्मीर यूटी के यंग नौजवान सीएम उमर अब्दुल्ला। जम्मू से सीनियर संवाददाता सौरभ दत्त की रिपोर्ट। घटनाक्रम सुबह 8:30 बजे से शुरू होता है, जहां बता दें मलकापुर शहर के भीड़-भाड़ के इलाके पुराने गांव की गंगेश्वर मंदिर रोड पर 14 साल की युवतियां अपने स्कूल जाने के रास्ते पर चल रही होती हैं और तभी वहां एक लाल रंग की गाड़ी से उतरे 2 नौजवान उनमें से एक लड़की को जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। शहर के मुख्य बाजार में हुई घटना को तुरंत शहर भर में फैलते देर नहीं लगती और कोई भी थोड़ी ही देर में भीड़ जमा हो जाती है और इस बात की चर्चा होती है। बता दें कि बुल्ढाना की ओर जाते हुए वाहन को अगले तहसील के शहर मोतला के आसपास रुकाकर लड़की को बचा लिया जाता है। तीनों आरोपी पुलिस बीड़ा जिले के माजर गांव के रहवासी हैं। वहीं पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं ये आरोपी जो बीड़ा जिला के माजर गांव के रहवासी हैं। बता दें कि खबर लिखे जाने तक लड़की को पीड़ित युवती को मेडिकल जांच के लिए सरकारी अस्पताल लेकर जाया जाता है। पुलिस तहकीकात में जुटी है, लेकिन सवाल यह है कि मलकापुर से बीड़ तक का लगभग 400 किलोमीटर का फासला तय कर आरोपी नौजवान जो कि केवल 17 और 19 वर्ष के हैं मलकापुर के पारपेट जैसे भीड़भाड़ इलाके में पहुंचकर एक लड़की को अगवा करने की कोशिश क्यों कर रहे थे और उनका इस वारदात को अंजाम देने के पीछे कारण क्या हो सकता है। इन बातों पर असमंजस बना हुआ है। पुलिस की तहकीकात पूरी होने पर दर्शकों तक अपडेट जरूर पहुंचाया जाएगा। महाराष्ट्र से सीनियर संवाददाता प्रसन्न व्यवहारे की रिपोर्ट। त्योहारों और आगामी नगर निगम चुनाव के मद्देनजर नासिक पुलिस आयुक्त संदीप कार्शिक द्वारा शहर में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस गश्त तेज करने और दंगा विरोधी तैयारियों के निर्देश जारी किए गए। इन्हीं निर्देशों के अंतर्गत पंचवटी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक गजेंद्र पाटिल के नेतृत्व में अपराध जांच दल को एक विशेष मिशन पर लगाया गया। पुलिस टीम ने मौके पर जाल बिछाया और संदिग्ध को हिरासत में लिया। आरोपी की पहचान सचिन रामदास आमटे उम्र 28 वर्ष निवासी अमाल हाउस कुमावत नगर पंचवटी नासिक के रूप में हुई है। पूछताछ के दौरान जब उससे अपराध से जुड़े सवाल किए गए तो उसने अपराध करना स्वीकार कर लिया। पुलिस द्वारा आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है और आगे की पूछताछ जारी है। नासिक से सीनियर संवाददाता प्रकाश खैरे की रिपोर्ट। देश के पूर्व रक्षा मंत्री 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे पद्म विभूषण से सम्मानित समाजवादी पार्टी के जन्मदाता नेताजी मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि रीवा के विवेकानंद पार्क में सपा जिला अध्यक्ष अमरेश पटेल की अध्यक्षता में मनाई गई। पुण्यतिथि कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामायण सिंह पटेल, राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारियों में शिव सिंह एंड अजय शुक्ला, MD खान, नाथूलाल सेन, संत कुमार पटेल, अशोक यादव, प्रदीप बंसल, सत्यभान पाल, राम विश्वास यादव, प्रमोद शुक्ला, नागेंद्र सिंह गहरवार, रामचंद्र यादव, रामलखन साके, सज्जन यादव, सौरभ यादव, सचिन साके, ऋषि पाठक, आदर्श द्विवेदी, नितेश यादव, संतोष यादव, अरुण पटेल, किशन पटेल, ज्वाला सिंह, रमेश वर्मा, मयंक सिंह आदि सहित तमाम समाजवादी मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा कि नेताजी के संघर्षों को पूरा देश हमेशा याद करेगा और ये जानकारी मीडिया प्रभारी जयसिंह पटेल ने दी है। आज सम्माननीय नेताजी की तीसरी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हमारे रीवा जिला इकाई के समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने उपस्थित होकर उनकी श्रद्धांजलि अर्पित किया तथा सबसे प्रमुख बात यह है कि उनके पदचिन्हों में उनके बताए हुए रास्तों में चल कर के वो समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लिया। आज जिला इकाई रीवा द्वारा समाजवादी पार्टी के संस्थापक परम श्रद्धेय नेताजी की पुण्यतिथि मनाई गई। साथ ही समाजवादी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का सभी समाजवादी कार्यकर्ताओं द्वारा संकल्प लिया गया। श्रद्धेय नेताजी के पुण्यतिथि के लक्ष्य में जिला इकाई रीवा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है और नेताजी के लाखों करोड़ों लोग पूरे देश में आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किए हैं। तो नेताजी अमर रहें, उनके चरणों में हम सब नमन करते हैं। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट।
शाजापुर जिले के ग्राम कोहलिया में चल रहे 7 दिवसीय मां अम्बे गरबा महोत्सव का भव्य समापन हुआ। समापन अवसर पर श्रृंगारपुर बालाजी धाम के महंत महामंडलेश्वर श्यामदास महाराज विशेष रूप से मां अम्बे के दरबार पहुंचे, जहां ग्रामवासियों ने उनका पुष्पहारों से स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त किया। गरबा महोत्सव के दौरान प्रतिदिन छोटी छोटी बालिकाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में मनमोहक गरबा नृत्य प्रस्तुत कर श्रद्धालुओं का मन मोह लिया और इसके साथ ही बाहर से आए कलाकारों और डांसर्स ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। श्रद्धालुओं के उत्साह के बीच मां अम्बे के दरबार में भव्य भजन कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे क्षेत्र से बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। पूरे 7 दिनों तक गांव में धार्मिक और सांस्कृतिक वातावरण बना रहा। समापन पर भक्तों ने मां अम्बे से सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। शाजापुर से सीनू संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। तौरागांव स्थित पिपरेश्वर महादेव मंदिर में किया गया दंगल का आयोजन। बिछिया ब्लॉक प्रमुख नीरज गुप्ता, पूर्व विधायक प्रतिनिधि मोहन सिंह ने पहलवानों का हाथ मिलाकर दंगल का शुभारंभ किया। दंगल में अनीश पहलवान फतेहपुर सचिन पुरवा को पटकनी देकर जीत हासिल की। जयंत पहलवान ओरहर ने राजेश पहलवान कानपुर को पटकनी देकर बने दंगल केसरी। दंगल कार्यक्रम में राजू अवस्थी, शिव शंकर प्रजापति, निकेश विमल, प्रशांत रावत, पूत महाराज, जाहिद खान, राजन वाजपेयी, चंद्र प्रकाश गुप्ता सहित हजारों की तादाद में दर्शन करने के लिए मौजूद रहे। उन्नाव से सीनू संवाददाता शशांक मिश्रा की रिपोर्ट। खबर नासिक से है, जहां धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में प्रसिद्ध नासिक शहर में हाल के महीनों में बढ़ते अपराधों ने चिंता बढ़ा दी थी। चोरी, मारपीट और अवैध गतिविधियों से शहर की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन नासिक के पुलिस आयुक्त संदीप कांडिक की सख्त कार्रवाई ने हालात बदल दिए और उन्होंने अपराधियों पर नकेल कसने के साथ साथ पुलिस विभाग को हर छोटे अपराध पर तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। रात्रि गश्त और संवेदनशील इलाकों में विशेष पेट्रोलिंग बढ़ाई गई। इन उपायों के परिणाम स्पष्ट हैं कि कई बड़े अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, अवैध धंधों पर कार्रवाई हुई और अपराध दर कम इन उपायों के परिणाम स्पष्ट हैं कि कई बड़े अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, अवैध धंधों पर कार्रवाई हुई और अपराध दर में कमी आई। जनता ने इस पहल का स्वागत करते हुए पुलिस की सक्रियता और दृढ़ निश्चय की सराहना की। वहीं मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी पुलिस को सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया और कहा कि हर अपराधी को कड़ी सजा मिलेगी। नासिक में कानून और व्यवस्था की ये मजबूती अब न केवल अपराधियों के लिए चेतावनी है, बल्कि शहरवासियों के लिए सुरक्षा की गारंटी भी बन गई है। निश्चितपणे मी स्वतः सीपींना पूर्ण मोकळीक दिलेली आहे आणि अतिशय चांगल्या पद्धतीनं या ठिकाणी काम चाललेलं आहे। कोणी कुठल्याही पक्षाचा असो, भारतीय जनता पक्षाचा असो, महायुतीचा असो की उबाठा राष्ट्रवादी काँग्रेस किंवा अन्य पक्षाचा असो, कोणालाही या ठिकाणी स्पेअर करू नका अशा प्रकारे त्यांना पूर्ण अधिकार देण्यात आलेले आहेत। त्यामुळे मला असं वाटतं की ही जी काही गुन्हेगारी आहे आणि विशेषतः गुन्हेगारी करत असताना काही लोक त्याला जो राजाश्रय देण्याचा प्रयत्न करतात, वेगवेगळ्या पक्षात त्या ठिकाणी राजाश्रय देण्याचा प्रयत्न करतात, तर अशा सगळ्या गोष्टींना मोडून काढायचा आम्ही या ठिकाणी निर्णय घेतलेला आहे। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं आहे की कोणाचा काही पास्ट असो, पण आता जर कोणी गुन्हेगारीमध्ये जात असेल किंवा गुन्हेगारीत आढळेल तर नासिक से सीनियर संवाददाता प्रकाश खैरे की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।